Hi, hello everyone. This is Deepika Avasthi, and today we are going to conduct a workshop. This is going to be a 5-day workshop. Today is workshop one, or first day of workshop, in which we are going to cover mainly general English questions. In next 5 days, of course, we are going to cover some reasoning section questions as well, like critical reasoning, deductive reasoning, which are often asked in SNAP. But in today's class, we are only going to cover the general English section. So in this predominantly we are going to cover vocabulary questions, and vocabulary ke alawa, apart from vocabulary, some grammar, basic grammar, idioms, phrases, everything which is asked in SNAP exam. स्टूडेंट्स बहुत कम दिन बचे हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और इसको आप जितने वर्ड्स करवा रहे हो स्टूडेंट्स, ये सारे लास्ट 5 या 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं। तो अगर आप इनको कर लेते हो तो आपका एटलीस्ट सेक्शन जो इंग्लिश का सेक्शन है वो डेफिनेटली निकल जाएगा। और लास्ट 2-3 ईयर से ऐसा ही हुआ है, हम जनरली पीवाईक्यू ही सॉल्व करते हैं और काफी अच्छा जाता है सेक्शन। ऑफ कोर्स जनरल इंग्लिश का जो वेटेज है कंपेयर टू क्वांट एंड रीजनिंग स्लाइटली लेस है, बट और आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी यार, 15 क्वेश्चन 10 मिनट में खत्म करने। तो आई वुड से दिस विल सफाइस। आप इन 5 वर्कशॉप्स को देख लो, एंड लाइक इफ यू गो फॉर द एग्जाम, आप मेजॉरिटी लाइक कट ऑफ तो डेफिनेटली आप क्लियर कर ही लोगे। So yeah, so let's get started. By now हर कोई prepared होगा with snap workshop, with snap exam I mean. So आज हम directly question से ही start करेंगे और questions के through ही discussions करेंगे कि भाई like कैसे कैसे solve करना है, rather than starting with very basics and just vocab. I would say simple vocab. ठीक है. So very first question students is we have to find the synonym of the word usurp. Right? What is the meaning of the word usurp? Now, usurp means, I would say, to take or to I would say seize, confiscate, कोई चीज ले लेना, and then उसको use करना. For example, कोई मुझे कुछ question पूछे अभी यहाँ पे about someone else, something else. So I'll say I'll not usurp this platform to talk about someone else or something else, because right now the focus is SNAP exam. So उस हिसाब से what do you think can be the synonym of this? So usurp means to, let's say here, if I have to give you the meaning, interfere, to seize, to confiscate for your own use. like दोनों words में थोड़ा difference है, but this is how we use this word usurp. So what do you think? देखो, adjudge means to judge. So ये word से आपको समझ आए. To capitulate means to conclude something, to end something, right? So conclude, yeah, right, conclude something. Now you have to choose from A and D. कई बार देखो vocabulary में हम एक educated guess कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, या फिर we can let it be. So the correct answer here is to encroach, right? To encroach into someone's privacy. ऐसा आपने सुना होगा. That means to interfere, to get into, right? Being very encroaching. If we say some people are very nosy as in very encroaching. उनको हर चीज पता करनी है, हर सवाल का जवाब चाहिए, राइट? आप करने जा रहे हो एक चीज पर आपको पहले उनके 100 सवालों के जवाब दो. Sometimes so that is encroaching nature, like too much interference, not a regular interference. Yeah. Abdicate, what is the meaning of the word abdicate? Anyone, please tell me in comments. बताओ. To leave something, देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, जब्त कर लेना. बट abdicate का मतलब होता है कुछ छोड़ देना. So it's like if I say renounce, the king has abdicated his throne. या renounced his throne. Yes, getting this? All right. Next question, everyone. I'll just clear this. Wait. ठीक है, चलो. So choose the synonym of flagrant. Flagrant सुनने में तो लग रहा है फ्रेग्रेंट बिरयानी. व्हेन वी ईट बिरयानी, बड़ी फ्रेग्रेंट स्मेल आती है, isn't it? But नहीं, it's flagrant, L, right? Not fragrant. Yeah. So yes, answer in the comments, students. Right.
सो फ्रेग्रेंट का मतलब तो ऑफ कोर्स होता है स्वीट स्मेलिंग, अच्छी, अरोमेटिक, राइट? सो ये हो सकता है, बट फ्लेग्रेंट डेफिनेटली डज नॉट मीन दैट, इसलिए शायद ये ऑप्शन दिया जस्ट टू कंफ्यूज यू. मीक इज समवन हु इज अंडर कॉन्फिडेंट, टिमिड, राइट, शाय. आपको अगर स्टेज फियर है फॉर एग्जाम्पल, सो यू आर अ टिमिड या शाय पर्सन, नॉट टिमिड आई वुड से बट शाय पर्सन, पर आप जनरली सोशली ऑकवर्ड हो, आप किसी से बात नहीं कर पाते हो, बिल्कुल किसी से भी नहीं, वन ऑन वन भी नहीं, पर्सनली भी नहीं, या आपको फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप टिमिड या मीक हो सकते हो. Blatant मतलब openly, like, for example, if we say some people throw like garbage openly, like they don't even care कि बाकी लोग क्या, so they are like, they show blatant disrespect to environment, like openly, like they don't care. Flagship is like main or chief program, like if we say कि I am का या snap का या symbiosis का मेन जो प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम, दैट इज एमबीए. वो बहुत सारी दूसरी डिग्रीज भी देते हैं, बट फ्लैगशिप इज देयर एमबीए. So main या chief is the meaning. So the correct answer here is blatant. Uh, Flagrant, blatant, it means doing something openly without any inhibition, without any shyness. Yep. All right. Let's move to next question. Study hard or dash, you will not pass the exam. So which word do you think will fit in this blank? तो आई थिंक दिस इज इजी. सी, इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके 15 सेकेंड में मैक्स हो जाने चाहिए. स्टडी हार्ड एल्स यू विल नॉट पास द एग्जाम, इजंट इट? नॉट स्टिल एंड देन. सो दिस इज अ बेसिक ग्रामेटिकल क्वेश्चन. फिर आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी, हार्ड, मीडियम, वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. डू नॉट ईट द केक, वेट, dash your friends come. So wait when your friends come, for your friends come, till your friends come, as your friends come. What do you think? Yeah, correct everyone. Wait till, see, for wait for your friends, full stop. अगर यहाँ पे full stop होता तो wait for your friends. But till you, जब तक आपके friends तब तक wait करो, हम ये बोलना चाहते हैं, है ना? Friends आएंगे, फिर उसके बाद आप basically केक खाना. ठीक है? All right. ग्रेट एवरीवन, गुड जॉब. आपका स्कोर आप काउंट करते रहो, इसमें अप्रोक्सीमेटली 30+ क्वेश्चंस हैं, अराउंड 25 to 30+ क्वेश्चंस. सो लास्ट में आप मुझे स्कोर बताना आपका कि आउट ऑफ 30 कितना आपका स्कोर है इन द चैट बॉक्स. ठीक है? ऑल्सो द डिफिकल्टी लेवल, of course we'll stick to the snap level, but difficulty level or the number of questions will keep increasing in this workshops. जो मैंने बोला है 5 day की workshop है, इसलिए थोड़ा और प्रिपेयर होके आओ. जो भी फर्स्ट वर्कशॉप में हुआ है उसके वर्ड सारे याद रखो, भूल नहीं जाना है कि अरे बस एक बार वीडियो देख लिया, क्लास कर लिया, फिर अभी उस वर्ड का अगर मैं फिर से मीनिंग पूछूं सेकेंड या थर्ड वर्कशॉप में तो आप भूल चुके हो. दैट शुड नॉट हैपन. ओके. टर्मोइल, कंफ्यूजन, व्हाट आर दीज? इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है या कुछ रिलेशन है, रिलेशनशिप? यस, दीज आर सिनोनिम्स एवरीवन, राइट? ये हैं सिनोनिम्स. सो इनमें से कौन से दो वर्ड्स एग्जैक्ट सिनोनिम है? यस, देखो, कॉस्टिक होना मतलब एक्सट्रीमली हार्श होना, वेरी हार्श, अब्यूजिव, किसी को बहुत जोर से आपने डांट दिया, दैट इज बीइंग कॉस्टिक, राइट? सो वेरी वेरी हार्श. वेरी सरकास्टिक होना मतलब टॉन्ट देना, मजाक में थोड़ा सा कुछ बोल देना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को बोलूं ऐसे कि अरे आज तो आप क्लास के लिए बहुत लेट आए हो, ऐसा करके, तो आई एम बीइंग सरकास्टिक, राइट? मैं डांट नहीं. अगर मैं किसी को बोलूं तो आप कल से मत आना, राइट? लेट आए हो तो आप कल से, तो आई एम बीइंग कॉस्टिक ना, राइट? सो दोनों में थोड़ा फर्क. सरकास्टिक में थोड़ा मजाक में वो चीज बोल देते हो, कॉस्टिक में आप थोड़ा गुस्से में वो चीज बोलते हो. दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता. वी आर लुकिंग फॉर सिनोनिम. ना मेटामॉर्फोसिस मींस चेंज इन फॉर्म, राइट? ऑफ कोर्स एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा ही है, बट इट मींस चेंज इन फॉर्म. जैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती, जब बटरफ्लाई बनती कैसे, कैटरपिलर से इट अपना फॉर्म चेंज करती रहती, इजंट इट? करती है. दैट्स हाउ इट शोज मेटामॉर्फोसिस एंड बिकम्स अ बटरफ्लाई. ट्रांसफॉर्मेशन उसी टाइप का है, बट एग्जैक्ट नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कीप वर्किंग हार्ड, like if you start working hard for let's say 6 months or 1 year,
यू विल सी ये ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ, अपने आप को ही देखोगे आप कितने चेंज हो चुके हो इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, नेचर, एवरीथिंग एल्स. सो ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बट राइट, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सिनोनिम. तो ये भी चला गया. असैसिनेशन मतलब किसी को पैसे देके मरवाना है, सिंपल वर्ड्स कि भाई अपने हमने बहुत कुछ सुना है. फॉर एग्जांपल यूएस प्रेसिडेंट्स, राइट, के काफी असैसिनेशन के वीडियोस हैं यूट्यूब में, या काफी स्कीम प्लॉटिंग वगैरह है, ऑल दोस थिंग्स. सो मर्डर मतलब किसी ने डायरेक्ट जाके किसी को गुस्सा है, किसी पे मर्डर कर दिया, उसमें किसी ने पैसे नहीं दिए बस. सो अगेन दीज आर सिमिलर थिंग्स. इसमें भी यू किल समवन, इसमें, बट असैसिनेशन में जो मार रहा है उसको पैसे मिले, उसको कोई पर्सनल कुछ नहीं है. मर्डर में जनरली आप सामने वाले का मर्डर कर रहे हो बिकॉज ऑफ, नॉट नेसेसरली किसी ने पैसे दिए. isn't it? So there is a difference. Again, not exact similar. Chaos and disorder. Yes, if I say there's so much disorder in the class right now, बहुत बच्चे शोर कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, या बहुत chaos हो रहा है भाई लाइफ में. So similar, right? This is how we use the words. So yes, D is the correct answer, everyone. Let's move to next question. Correct meaning of the idiom mea culpa. अब देखो इसमें आप थोड़ा सा आई वुड से हिंट लेने की कोशिश करो. कल्पा से स्पेशली, कल्पा, कल्प्रिट. इफ आई से यू आर द कल्प्रिट, मतलब यस, सो कल्प्रिट हम किसको, जिसने कुछ गलती की है ना, यू आर द कल्प्रिट. इफ आई से, और दिस पर्सन इज द कल्प्रिट, मतलब जिसने गलती की है. सो मीन्स मिया, मिया मीन्स ऑलवेज आई एम, राइट, आई एम. सो उस हिसाब से आई एम केपेबल या आई एम टू ब्लेम, आई विल या आई लव तो हो नहीं सकता, राइट. तो थोड़ी हिंट्स हमें होनी चाहिए रूट वर्ड्स अगर हम करेंगे. एंड बाकी की आई एम केपेबल या आई एम टू ब्लेम थोड़ा हमें ऑफ कोर्स फिर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से करना पड़ेगा चूज. सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, कल्पा, कल्पेबिलिटी और कल्प्रिट फ्रॉम दैट. यप. ऑल राइट एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई विश dash that Harish was ill, I would have gone to see him. What do you think will fit this blank? या तो काश, देखो आई विश मतलब काश, इफ, या आई विश आई वर दिस, है ना, आई विश आई वर दी प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री. काश ऐसा होता मुझे, काश मुझे पता होता दैट हरीश वाज इल, आई वुड हैव गॉन टू सी हिम. तो मैं जाता, देखने पता हो तो जाता ना. सो आई विश आई वाज नोइंग, नॉट रियली. जब आप आई विश बोलते हो तो उसके बाद आपको जो भी आप बोल रहे हो, आई विश आई was, I were this, I had known this, हमेशा आपको past tense में एक तो जो भी चाहिए past tense में चाहिए. So also I was knowing नहीं, I had known, like not past continuous. I know present tense तो चलेगा ही नहीं, है ना. would have been भी नहीं. I wish I had known that Harish was ill, I would have gone to see him. Isn't it? Yeah, this is, I think हम कई बार इस तरह के questions कर चुके हैं. She kept all her dash in the bank locker. So just choose a correct spelling or correct form of the word which should fit grammatically in the blank. जिसका सही आंसर होगा उसके लिए ये रिंग जो बनी है, ये रिंग आपकी. So yes, she kept all her jewelry. There's nothing like jewelries. No, jewelries. नहीं, jewels होता है, बहुत सारे jewels I saw. ज्वेलरी, भले 10 आपके पास ज्वेलरी, आप स्टिल उसको ज्वेलरी ही बोलोगे. ऑल्सो देयर शुड बी डबल एल, सो इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है. यहाँ पे भी एक ई आना चाहिए. ठीक है, परफेक्ट एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द ऑड मैन आउट. इसमें 3 वर्ड्स हैं जो फूड रिलेटेड, फूडी, समवन हु इज फूडी, इंटरेस्टेड इन फूड, इन टेस्टिंग और इन ईटिंग समथिंग, एंड वन इज जस्ट एब्सोल्युटली डिफरेंट. So
एपिक्यूरियन, समवन हु इज अ कनॉइसर, एक्सपर्ट ऑफ टेस्ट, मतलब जनरली आपने देखा होगा मास्टर शेफ में लोग डिश बनाते हैं फिर लोग थोड़ा टेस्ट करके बताते हैं भाई आपका बहुत अच्छा है, आपका बेकार है। सो उसको बोलते हैं हम लोग भाई गुरमे। एपिक्यूरियन बेसिकली कनॉइसर, एक्सपर्ट ऑफ टेस्ट। इट सेम लाइक गुरमे, जिसको भाई एक बड़े हर चीज की, फूड की, वाइन की एक पता है, एक क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी किस तरीके की होती है। गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमिस अगेन रिलेटेड टू फूड, ईटिंग एंड एवरीथिंग। सो ये तीनों वर्ड्स ही सेम चीज को, सेम ही फील्ड से रिलेटेड। बट हिडियस मीन्स डिस्गस्टिंग, या हिडियस मीन्स अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव, right? Like if I say you can't go to interviews hideously, as in आप बस सुबह उठे, चप्पल पहनी और इंटरव्यूज में चले गए, isn't? So you will of course look hideous. You have to basically wear formal clothes, है ना? आपको थोड़ा सा अपने बाल वाल ठीक करने पड़ेंगे, and then you should look presentable. That is definitely necessary. So and अगर हम ऐसे ही कहीं चले जाते हैं भाई सुबह उठ के ऐसे ही, तो we of course will look hideous. So basically looking unattractive. All right. So that is the odd one out. Next question, everyone. Find the odd man out. अब देखो, जब आप इस तरह क्वेश्चंस करते हो कई बार यू कैन मेक एन एजुकेटेड गेस। जैसे आपको कंफ्यूज का मीनिंग तो पता है, आपको रीयूज का मीनिंग भी पता है, ये दोनों वर्ड्स तो सेम है नहीं, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, इजंट इट? अब अगर बाकी के दो वर्ड्स रीयूज के सिनोनिम्स है, लाइक बी विल्डर, बेम्यूज, तो आप कंफ्यूज चूज कर लो। अगर बाकी के जो ए और सी हैं वो डी के सिनोनिम्स हैं, तो आप बी चूज कर लो, isn't it? मतलब बाकी दोनों का मीनिंग या तो कंफ्यूज है या रीयूज है। व्हाट डू यू थिंक? So I'm bewildered to see this, है ना? So bewildered, bemused looks more like confused rather than reuse. So yes, right guess everyone. Reuse is the odd one out here because other words mean the same. सबका मतलब है confused होना. Right. So this is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर यू हैव टू अरेंज दिस सेंटेंस जिसके वर्ड्स डिवाइडेड हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक? ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको मुझे बताना है कौन सा, विच विल मेक द राइट सेंटेंस। सो ऑफ कोर्स जब हम रीड कर रहे हैं, वी मेट हर अगेन, वी मेट हर, वी मेट हर, है ना, एट द हॉस्पिटल, समथिंग लाइक दैट। सो 657 से शुरू होगा, तो 657 से ये दोनों, सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गया। अब नाउ आगे देखो 3-1 या 1-3, बिकॉज बाकी तो फिर सेम ही है। सो वी मेट हर 1-3 या 3 at again, या again at hospital, of course again at hospital, isn't it? At again hospital नहीं, again we met her again at hospital the last evening, isn't it? So yes, A is correct. देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, प्लीज आंसर दो 30 सेकेंड्स में इन द चैट बॉक्स। Yes, the winter was so severe. Winter इतना ज़्यादा था that even water in the taps was frozen, and this created a lot of inconvenience to everyone in the family. और टैप में water भी freeze हो चुका है, इतना winter है, like इतनी ठंडी है ना? तो thankfully अपने मतलब most of the states में इंडिया में इतनी ठंडी नहीं है। Of course north side में जो students देख रहे हैं वहाँ पे comparatively ज़्यादा होती है, right? But yeah, so abhi winters are coming, of course, so be ready students with all your blankets, कंबल्स, जैकेट्स, स्वेटर्स, एवरीथिंग। कई जगह तो स्टार्ट ही हो गया, यहाँ पे भी स्टार्ट नहीं हुआ है, आप मुझे देख ही सकते हो। Yeah, the members of his family are coming in this train, and I'm sure that it will be a memorable trip for all of them. So कैसे होता है? यू आर गोइंग समवेयर
अब मैं बोलूंगी आप कैसे जा रहे हो वहां पे, ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? तो यू विल से आई एम गोइंग बाय दिस ट्रेन या आई एम गोइंग बाय दिस फ्लाइट. सो यू ऑलवेज गो बाय समथिंग, नॉट इन समथिंग, है ना. आई एम इन द ट्रेन, आई कैन से, आपने मुझे कॉल किया ऐसे, हे आई एम इन द ट्रेन, राइट, बट आई एम गोइंग समवेयर, आई एम कमिंग टू यू बाय ट्रेन. ओके. ओके. चलो, तो ये अपना थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया. एक दो क्वेश्चन मैंने डाल दिए. ऑफ कोर्स हम एज ए सेड जनरल इंग्लिश के ही क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, बट नेक्स्ट 5 वर्कशॉप में हम बहुत सारा रीजनिंग भी करने वाले हैं. लाइक आपके 3 सेक्शंस है, क्वांट, रीजनिंग, वर्बल. तो वर्बल मैं पूरा इसमें कवर करूंगी. लास्ट 5 ईयर से कुछ रीजनिंग के काफी सारे, नॉट इंटायर रीजनिंग आई वुड से, बहुत सारे सारे बेसिकली आई वुड से मोर रिलेटेड टू क्वांट है, बट सीरीज एंड ऑल दीज थिंग्स वो तो हम कर ही सकते हैं. तो इसके काफी सारे क्वेश्चंस हम वर्कशॉप 2, वर्कशॉप 3, 4, 5 में थोड़े थोड़े करके कवर करेंगे. इसमें तो खैर आई थिंक 1 या 2 ही क्वेश्चंस हैं. तो आप देखो, मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट देती हूँ या 2 मिनट देती हूँ. चलो, आप मुझे आंसर बताओ चैट बॉक्स में, और फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे. यहाँ सो अब देखो एक और चीज, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. 7th नंबर, यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ होगा, और फिर 7. वो ये पूछ रहे हैं. पहली बात तो ये नेक्स्ट नहीं पूछ रहे हैं, तो गलती से भी कुछ और चूज मत कर लेंगे जो भी नेक्स्ट हुआ वो. अब इन दोनों में क्या फर्क है? अगर मैं इन तीनों को देखूं तो इट लुक्स लाइक 5 into 2, राइट, एंड देन जो भी 10 होता है इज इक्वल्स टू 10 -1, है ना, इज इक्वल टू 9. दिस इज द पैटर्न दे आर सॉल्विंग. -1 कर दिया. ओके. अब 9 2 ज़ा 18, है ना. 9 2 ज़ा 18, एंड 18 -2 इज 16. तो अच्छा, 1 2 3 4 करते रहना है. इधर पे मैं लिख देती हूँ, समझ आ गया. इधर तो इंटू टू करते रहना है. फाइन, राइट. सो 16 2 ज़ा 32, और फिर उसमें से मैंने -3 किया तो 29. ऐसे करते करते 29, राइट, 2 ज़ा आप करते रहोगे 54. अब 54 2 ज़ा, अब आपको देखना है. चलो इसको मैं स्किप कर देती हूँ, अभी तो हमें पैटर्न पता चल चुका है. 54 इंटू 2, राइट, और जो भी आएगा उसको आप -5 करोगे. क्या आ रहा है देखो, है ना, 108. 108 में आप 5 माइनस करो, कितना बचेगा? 103. पर ये पूछा नहीं है आपको, 6th नंबर नहीं पूछा आपको, 7th पूछा है. तो अब आपको क्या करना है? 103 into 2, राइट, विच इज, जल्दी बताओ क्या होगा. और फिर जो भी आएगा दैट विल बी माइनस, क्या था, 6, इजंट इट. या हमने 1 किया, 2 3 4 5 6, या -6. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट्स कमिंग, जल्दी बताओ. है ना, 206. 206 में 6 गया, बचा 200. करेक्ट, है ना. इजी क्वेश्चन है. ठीक है, जिसको नहीं आया उसके लिए थोड़ा मैंने स्लो सॉल्व किया है, बट या ठीक है. Question now, back to our general English students. An experienced politician who knew better than to launch a campaign in troubled political waters, she intended to wait for a more dash occasion before she announced her plans. So, what do you think? So, an experienced politician, right? She intended to wait for a better occasion, है ना. Right, okay, वो एक right time के लिए wait कर रही थी. Right occasion before she announced her plans, कि भाई एक right time पे मैं बताऊंगी, तो सही वक्त का इंतजार करना. Is what? Questionable time, occasion? No. Provocative, provocative is भड़काना किसी को, provoke करना, गुस्सा दिलाना. नहीं. Perfect occasion या propitious occasion? प्रोपिशियस. प्रोपिशियस मीन्स फेवरेबल टाइम, ऐसा एक वक्त जब आपको लगे कि हाँ इसमें मेरा काम हो जाएगा.
है ना, लाइक फेस्टिवल्स पे हम लोग नई चीजें शुरू करते हैं, कुछ भी नया काम शुरू करना तो विल डू इन फेस्टिवल, दैट इज अ प्रोपिशियस डे, नॉट अ परफेक्ट परफेक्ट डे तो है ही, बट राइट वर्ड क्या है उसके लिए, है ना, हर चीज को हम परफेक्ट गुड बैड नहीं बोल सकते, लाइक दिस शू इज गुड, है ना, दिस क्लास इज गुड, ये रूम इज गुड, है ना, दिस वेदर इज गुड, वो तो ठीक है, बट राइट वर्ड क्या है, दैट इज ओकेजन के लिए वी से प्रोपिशियस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. The judge ruled that evidence was inadmissible on the ground that it was not relevant to the issue. उनका वो evidence वो नहीं है जो issue चल रहा है उससे relevant नहीं है, तो इस तरह का कोई evidence अभी like नहीं, we can't take in this case. It's like for example किसी पे केस चल रहा है चोरी का, तो उसने चोरी की है कि नहीं किया, आपको ये सबूत देना पड़ेगा. उस वो इंसान फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कुछ और भी करता है, फॉर एग्जाम्पल डेली लेट जाता है ऑफिस, तो आप ये नहीं बोल सकते देखो ये सबूत है, नहीं, उसका इससे क्या लेना देना, इजंट इट, इवन इफ दैट इज द रॉन्ग थिंग. सो should be, so which word means relevant? Germane. Germane means relevant. Useful was a useful to the issue. We are saying this is not relevant to the case, to the issue at hand. Inchoate का मतलब होता है rudimentary, something which is rudimentary, not developed yet. अभी develop नहीं हुआ है, अभी starting stage में है कोई चीज, ठीक है. Manifest means automatically कोई चीज होना, something happening automatically because you want it. For example, if I say अरे आपको, आपने जो सोचा वो आपको मिल गया, that means you have manifested it. आपने सोचा और आपको मिल गया, like that. So to manifest something means you want something and that's happening to you. ठीक है. Next question everyone. 1 minute to read. देखो, climb means areas जहाँ पे एक certain climate होता है, right? उसको हम बोलते हैं कि भाई ये, yeah. Okay, so to see dash from the dash summer of the plane, plane उसमें generally गर्मी होती है. So if people are prefer going to cooler areas, जहाँ पे समर मंथ्स में जब भी गर्मी है तो वो कूलर जगह पे जाना चाहते हैं, भाई आपके यहाँ बहुत गर्मी चल रही है, आपको शिमला, कुल्लू मनाली वहां पे जाके अभी 1-2 महीना रहना है. सो आप उससे क्या, आपको राहत चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए गर्मी से फ्रॉम दी समर, है ना. सो राहत, देखो रिफ्यूज लेना मतलब घर लेना, शेल्टर भी घर को हम बोलते हैं. So respite will be the perfect word, or right word. Respite means relaxation. To get relaxation, yeah, relief from relaxation or relief फ्रॉम वेरी बैड समर. स्कॉर्चिंग मतलब बहुत ही समर की, मतलब बाहर जाओ तो बिल्कुल जल भुन जाओ, so जल भुन ऐसे बिल्कुल सूख जाओ, तो पूरा मतलब आई वुड से सन बर्न्स हो जाए आपको, उस तरह का. सो बॉइलिंग समर नहीं, बट मोर लाइक स्कॉर्चिंग. सो अदर ब्लेजिंग भी हम बोलते हैं, बट राइट फर्स्ट वर्ड्स के हिसाब से रिस्पाइट डेफिनेटली फिट्स द बेस्ट. सो अगर आपको दो में से एक वर्ड भी श्योर है तो भी आपको आंसर इजीली मिल जाएगा. सो यहाँ पे 3 इज द करेक्ट आंसर. All right, next question, everyone. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो आप नोटिस करो दोनों सेंटेंस बट से सेपरेटेड है, समथिंग एंड देन बट. सो जब भी हम कोई दो सेंटेंस बट से कनेक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं, सो दोनों कंट्रास्टिंग होने चाहिए. अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा, पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा.
द कॉलमनिस्ट वॉज ऑलमोस्ट डैश व्हेन ही मेंशन, तो वैसे वैसे तो वो बहुत अच्छा बोल रहा था, लेट्स से अपने फ्रेंड्स के बारे में बोल रहा था तो अच्छा ही बोल रहा था, बट ही वॉज अनप्लेजेंट, नेगेटिव। तो अगर बट के बाद नेगेटिव वर्ड है तो पहले तो मुझे पॉजिटिव ही चाहिए। हो गया क्लियर? सो ही वॉज अनप्लेजेंट एंड इवन वेरी वेरी अनप्लेजेंट। लेट्स सी, यहीं से हमने हिंट ले लिया। when he discussed people who irritate, जो उसको इरिटेट उनके बारे में तो बहुत ही खराब बोल रहा था। कॉलमनिस्ट ने मतलब कॉलम लिखा अबाउट द पीपल ही नोज, फ्रेंड्स की तो बहुत तारीफ की, पर जो लोग इरिटेट करते थे उसको, उनके लिए तो बहुत ही बुरा बोला। सो फर्स्ट वर्ड रिकैल्सिट्रेंट होना ना, जिद्दी होना, स्टबर्न होना। सो ये तो नेगेटिव वर्ड हुआ, ही कांट बी स्टबर्न व्हेन ही मेंशन्ड हिज फ्रेंड्स, नो। रेवरेंशियल में रिस्पेक्टफुल होना, तो ये हो सकता है, ही मस्ट बी रिस्पेक्टफुल, वी आर लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव वर्ड, इसको अभी रख लेते हैं। सेंसिटिव होना मतलब कुड बी, राइट, पता नहीं, सेंसिटिव डजंट फिट वेरी वेल बट लेट्स कीप इट। इंसिपिड मतलब ब्लैंड या ल्यूक वार्म होना। इफ आई से कोई मुझे पूछे आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, मैं बोलूंगी यार ठीक ठीक है, कुछ खास नहीं है। सो लाइक इंसिपिड इज लाइक ल्यूक वार्म, बहुत होल हार्टेडली वार्मली बात नहीं करना, राइट। आपसे किसी ने कोई कुछ बात करा, आप बिल्कुल नॉर्मल एनर्जी, लो एनर्जी से बात कर रहे थे, यू आर शोइंग एन इंसिपिड नेचर, सो बी ल्यूक वार्म, हाफ हार्टेड, राइट, ऐसी बिना मन से कुछ बात करना, काम करना, दैट। सो ये भी नहीं हो सकता। मोर लाइक रेवरेंशियल, बट लेट्स सी सेकंड वर्ड। सो बट जो लोग उसको इरिटेट कर रहे थे उनके टुवर्ड्स ही वाज अनप्लेजेंट एंड इवन नेगेटिव कुछ चाहिए था। एंड एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस मतलब बिटर, कि भाई ये लोग तो ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। सो बिटर, यस, अनप्लेजेंट एंड बिटर। रिमोर्स मतलब दुखी होना, वो उनके लिए दुखी क्यों होगा जो उसको इरिटेट करते हैं। जो पसंद है उनकी तारीफ करेगा, और जो इरिटेट करते हैं उनको, उनके लिए उनको क्रिटिसाइज करेगा, इजंट इट? Okay, so second is the correct answer, students. Chalo, next question. Yeah, question number 19. Yeah, so let's start with question number 19. Quick breeding and immune to most pesticides, cockroaches. So देखो, cockroaches जल्दी जल्दी ब्रीड होते हैं, एक दिन में भी हजारों कॉकरोच पैदा होते हैं। अरे इम्यून टू, आप कितना पेस्टिसाइड छिड़क लो कोई फर्क नहीं, मतलब है। दैट मीन्स उससे क्या पता चलता है कि दे आर सो ईदर वाइड स्प्रेड और हार्डी। हार्डी मतलब डिफिकल्ट, समवन हु इज डिफिकल्ट टू डील विथ, या समथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट डील विथ, डिफिकल्ट सिचुएशन। सो ईदर दे आर वेरी हार्डी और दे आर वाइड स्प्रेड, क्योंकि भाई क्विक ब्रीडिंग है। वल्नरेबल नहीं, वल्नर कमजोर होना, राइट, वीक होना। फ्रेजाइल भी कमजोर होना, तो कमजोर तो नहीं है भाई, है ना। दैट इवन, सो हम लोग ये इतने वाइड स्प्रेड है या हार्डी है, दैट इवन अ प्रोफेशनल एक्सटर्मिनेटर मतलब जो लोग जैसे कीड़ों को मारते हैं, कॉकरोच को, मे फेल, जो प्रोफेशनल होते हैं, दे आल्सो फेल टू रिमूव देम, वो भी इनको हटा नहीं पाते कंप्लीटली। So discern या eliminate, has to be eliminate. So if you're confused between, let's say, one of the words, as I said in the previous question, तो आप कोई भी दोनों में से एक वर्ड जो डेफिनेटली फिट होगा आप उसके हिसाब से चूज करो। आप कंफ्यूज नहीं बैठे रहोगे कि यार इसका भी हिंट मिल रहा है, इसका भी वाइड स्प्रेड का, हार्डी का भी नहीं, बट सेकंड में तो क्लियर है ना, एलिमिनेट ही चाहिए। डिसर्न मीन्स टू ऑब्जर्व, टू डिफरेंट, टू बी एबल टू डिफरेंशिएट, कि भाई आई कैन सी these two people are actually different, or these two options are actually different, to be able to differentiate, right? So discern नहीं हो सकता, eliminate. So fourth is the correct answer. ठीक है, question number 20 everyone. Rotate and gyrate is almost similar. Rotate like earth rotates around the sun. Gyrate मतलब एक ही एक्सिस पे रोटेट करना, मतलब अपने ही इस पे आप रोटेट कोई कर रहा है। सो स्टिल सिमिलर वर्ड्स। सो अगेन आपको यहाँ पे देखना है कौन से दो वर्ड्स सिमिलर है, एज सिमिलर एज पॉसिबल, सिनोनिम्स। ठीक है, सो एक्कोलेड मीन्स टू प्रेज, एंड क्रिटिसाइज मतलब बुराई करना, नेगेटिव। सो ये तो एंटेनिम्स हो गए, दिस इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, है ना। सो रॉन्ग। Anachronism means of different time zone, like dinosaurs. If you see, it is an anachronistic movement, मतलब आप, it is not of this time zone, dinosaurs अब तो होते नहीं है, so of a different uh, of a different time zone, right?
different time zone. Cubism लेकिन शॉर्ट सिंपल तरीके से बता देती हूँ. क्यूबिज्म इज बेसिकली अ आर्ट फॉर्म, राइट, जहाँ पे आप डिफरेंट बेसिकली लाइंस मिला के फिर आप लैंडस्केप बनाते हो, या समझ लो सिंपल तरीके से बता दो कोलाज, है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर जो वो करके आप फोटोज वगैरह हम लोग बनाते हैं. सो कोलाज तरीके का एक आर्ट फॉर्म होता है, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट इतने से भी हो जाएगा सभी समझने के लिए. प्यूट्रीफाई मीन्स कोई चीज सड़ना, खराब होना. लाइक one day old food is generally putrefied and you should not eat it even though it doesn't look putrefied, है ना. एक दिन पुराना खाना जनरली दिखता नहीं है कभी कभी, बट स्टिल इट इज putrefied and you should not eat it. So putrefy. रिजेक्ट का मीनिंग आपको, सो ये दोनों तो कुछ भी रिलेटेड नहीं है, सिनोनिम्स है ही नहीं. एब्सॉल्व एंड एक्सोनरेट दोनों का मतलब होता है टू फ्री समवन, टू फ्री समवन फ्रॉम एक्यूजेशन, फ्रॉम अ ब्लेम, कि भाई कोर्ट ने बोल दिया आपको बाइज्जत बरी किया जाता है. सो बेसिकली कोर्ट हैज एक्सोनरेटेड दिस पर्सन, कोर्ट हैज freed this person, have freed this person from the blame, right, from blame. क्लियर है सबको? ठीक है, चलो. This question, how these two things are related. What is tepi? Tepi is tent. Yeah. देखो, रेड इंडियंस यूज टू स्टे इन टेंट्स, राइट. रेड इंडियंस जिनका वही घर होता था. तो कैंपिंग में हम टेंट रखते हैं, नॉट रियली. या तो मैन स्टेज इन हाउस या एस्किमो स्टेज इन इग्लू, ऐसा हो सकता है ना. 1 and 2 तो नहीं. अब क्या हम चूज करेंगे? सो एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज 3. व्हाई? बिकॉज एस्किमो का जो घर है, होम या हाउस है, वो इग्लू है. रेड इंडियंस का टीपी था, राइट. बहुत लोग घर गांव में आप जाओगे तो बहुत लोग मिट्टी के घर में भी रहते. डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज, इजंट इट? इग्लू, टीपी, हट, एवरीथिंग, बंगलो, विला, ये ऑल दीज आर हाउसेज. तो दिस इज अ वेरी जेनरिक टर्म, दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग. मेरे जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक तरीके के कहाँ रहते, किस तरीके के घर पे रहते थे या जगह पे, वो तो ये भी एक स्पेसिफिक टाइप हमें चूज करना पड़ेगा, विच विल बी सिंपल. या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. वूल एक्रिलिक. सो वूल इज लाइक प्लेन वूल, एक्रिलिक मतलब उसको जो आप थोड़ा और प्रोसेस करते हो, कलर्ड वूल जो होती है, आप उसको बोलते हो एक्रिलिक वूल, राइट. दोनों सेम ही चीज है, बस डिफरेंट तरीके के प्रोसेसेस से बनता है, राइट. कलर तो वैसे दो सेम चीजें, थोड़ा प्रोसेस अलग हो सकता है, बट सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स. देखो, दीज टू आर सिमिलर, तो हमें कौन से दो सिमिलर? मिनट्स एंड डे आर नॉट एग्जैक्ट सिमिलर. कॉटन और पॉलिस्टर में तो भाई बहुत फर्क है. हाँ, दोनों कपड़े फैब्रिक है, बट उसको रख लेते. इंडिया आसाम रिलेटेड जो डेफिनेटली आप निकाल सकते हो, उनको निकाल. नायलॉन रेयन, यस. नायलॉन रेयन और अगेन दोनों पॉलिस्टर के ही मटेरियल्स होते हैं, बट अगेन प्रोसेस करने का तरीका थोड़ा अलग होता है. कॉटन और पॉलिस्टर में ज्यादा डिफरेंस है. वी आर लुकिंग फॉर द क्लोजेस्ट टू वर्ड्स. सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ग्रेट स्टूडेंट्स. All right. So question number 23, everyone. Commitment, growth. Commitment दोगे तो रिजल्ट विल बी ग्रोथ. जिस भी चीज को कमिटमेंट दोगे, अपनी प्रेपरेशन को कमिटमेंट दे रहे हो कि यार अभी तो यार इस महीने यही करना है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर मैट एंड स्नैप ओनली. सो ऑफ कोर्स इट विल लीड टू ग्रोथ, है ना. सो दिस इज द रिजल्ट. Similarly, what you will do so that the second word will be the result. So taciturnity, silence. दोनों synonyms है. Second is not the result of first. Synonyms, same meaning. So this one goes away. Loquaciousness मतलब बहुत बात करना. Being very talkative. Right, talkative. So if you're very talkative, right, एक second. If
यू आर वेरी टॉकेटिव, तो लोग आपको सोबर या सिंपल नहीं मानेंगे. सोबर मतलब सिंपल, तो वो नहीं मानेंगे, है ना. ये दोनों तो सिनोनिम्स थे, ये मैं फिर से लिख देती हूँ इधर पे, तो ये नहीं हो सकता. गलीबल मीन्स बीइंग एक्सट्रीमली नाइव, वेरी इनोसेंट, तो बहुत इनोसेंट से एक्सपेरिमेंट इज नॉट द रिजल्ट, नॉट पॉसिबल. ingenuity means very smart, very knowledgeable. तो yes, अगर आप बहुत smart हो, बहुत knowledgeable, तो you will end up inventing something, being creative. So this goes, this could be the result of being showing ingenuity in any field. ठीक है, great. Let's move to next question, everyone. इसको क्लियर कर देते हैं, एक सेकेंड. या ठीक है. अरे, फिश मरमेड. Yeah. Fish, mermaid is type of a fish, basically a human fish mix, है ना. mermaid is something half body fish की होती है, half human जैसी होती है. वैसे ही कौन इसमें कैसा है. So this is unicorn actually. Unicorn. So unicorn is a type of imaginary horse which has just one horn. And tapestry is that कपड़ा जो आपको चर्च में या बहुत सारे होली प्लेसेस में दिखेगा, चढ़ाते हैं. दैट, सो दिस इज नॉट really as such related, right? First is not related. Pegasus can fly, वो तो ठीक है, पर इसमें दोनों एक बेसिकली पर्सन है. सेकंड इज अ पर्सन, फ्लाई इज नॉट अ पर्सन. कैट, लायन अगेन. हॉर्स, centaur. Yes, centaur basically is half horse, half human. Half horse, half human body. Right? Is a again imaginary character. जैसे भाई mermaid है, वैसे ही बोलते centaur को, and that is right. Horse का ही एक human type of, like you know, imaginary character है. ठीक है. What is the synonym of the word nomadic? Everyone? Nomadic is like Banjara. So, तो घूमते फिरते रहते हैं. So roving. Roving मतलब घूमना फिरना, changing one place to another, right? Like that. Barbarous means very cruel. Brave मतलब courageous, wild. Not necessarily wild or brave, but more like roving, है ना. ठीक है. Next question. Find the word which has same meaning as cleave. Yes, perfect, everyone. Cut. To cut is to cleave. Fill the blank with the appropriate word. The decision will dash the entire nation. ये आपका sentence है. And yeah. The decision will impact. Perfect, not impress. अब लोग impress क्यों नहीं? Because हम एक generic word ढूंढ रहे हैं, हमें कोई hint नहीं given है कि भाई ये good decision है, bad decision है. हो सकता है good तरीके से impact करे, in a bad way में. So this definitely goes rather than impress. Precarious. What is the synonym? Another means synonym. Yes, so precarious is uncertain, not very sure, unsure. So has to be uncertain, है ना, not secure. Exalted means किसी चीज को और glorify करने की, you have been exalted to next position. तो आपको लोगों ने इतनी तारीफ इतना appreciate किया कि आपका promotion हो चुका है, like that. So more like to promote something or someone. Okay, what is the synonym of the word parochial? Yeah, generally, I would say not all, but some people are parochial either because of lack of education or because they do not want to change themselves, or being very orthodox, right? बहुत ही पुराने जमाने का होना, conservative होना. So that is this.
एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जनरली हम आर्ट को बोलते हैं, और एनीथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, difficult to understand. Baffling also means something which is confusing. थोड़ा फर्क है. Unorthodox means modern, of course, as we know. And conservative will be the right synonym for parochial. All right. Impoverished. So poverish से आपको समझ आ रहा है poverty, poor. So if you look at someone who hasn't eaten for days, किसी ने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, बिकॉज सूख गया वो, तो you'll say, oh, you're looking impoverished. मतलब what will be the synonym? Mean affluent, मतलब rich. You're looking so rich, wealthy. अरे इतने सही, मतलब like आप lean हो गए हो, like नहीं. Impoverished मतलब सच में खाना खाए नहीं, कमजोर दिख रहे हो, healthy नहीं, कमजोर. Indolent is lazy. Inane is like insane, crazy. You look crazy. Could be crazy, lazy, but destitute means looking very weak, very famished, hungry, impoverished, like that. All right. Which of the following word means to recede back? वापस होना. Like after flooding, the waters will recede back. वापस पानी फिर sea में, ocean में, या जो भी nearest river है उसमें recede हो जाता है. या जो war के बाद अगर एक पार्टी को surrender करना है किसी भी एक टीम को, they recede. कि ठीक है अब और war नहीं करना है, बहुत लोग मर रहे हैं इस साइड के उस साइड के, तो let us recede back और retreat, come back. है ना? ठीक है. Being implied without being stated. आपने बोला नहीं है बस समझ आ चुका है, राइट? मैं अगर आपको पूछूंगी, अच्छा ठीक है मैं वहां जा रही हूँ, कितनी आइसक्रीम्स लेके आओ, अगर आप बिना बोले ऐसे बोलो 2 और 3, तो आपने बोला नहीं है, you just showed me this. So this is like a tacit response, tacit understanding. So something which you just say, या फिर सर हिला के आप हाँ या ना बोल देते हो, आप वर्ड्स यूज नहीं करते. So when you don't say anything but you just use gestures, is tacit response, tacit statements, tacit understanding, those things. Hostile means angry, right? Overt is more like extrovert type of person, open. Generic is general. ठीक है. Select the antonym or opposite of the word amicable. Opposite हमें चाहिए, हाँ. So friendly तो clearly synonym है. Affable भी, pleasant भी. Grumpy, grumpy मतलब जो हमेशा थोड़ा सा irritated टाइप का रहता है इंसान, हमेशा गुस्से में. फ्रेंडली नहीं, आपको बात करने के पहले डर लगे, पूछू कि ना पूछू, है ना? So it's like grumpy. ठीक है. Synonym of the word berated. Berate मतलब किसी को scold करना, डांटना. सो प्रेज तो नहीं हो सकता, उसका मतलब सुपरवाइज करना भी नहीं हो सकता. डिटेन, आप बहुत बार सुना होगा न्यूज में कि एयरपोर्ट में लोगों को डिटेन कर लिया, इन लोगों को डिटेन, स्टॉप, रोक लिया. उसमें डांटा नहीं, रोक लिया, है ना, चेक करने के लिए. सो लेट्स से इवन इफ यू डोंट नो रिप्रोच्ड, आप ये चूज करोगे, यू विल एंड अप चूजिंग रिप्रोच्ड ओनली. रिप्रोच आल्सो मींस टू क्रिटिसाइज समवन, टू berate, rebuke someone, all those things. ठीक है. That is it everyone. Thank you so much for watching this session. If you liked it, तो प्लीज आप कमेंट से बताइए आपको और क्या क्या चाहिए नेक्स्ट फ्यू वर्कशॉप्स. ऑल्दो नेक्स्ट 3 वर्कशॉप का कंटेंट तो रेडी है और आपको नेक्स्ट 2 डेज में मिल जाएगी, बट इफ यू वांट समथिंग आई विल ऐड टू इट ऑल्सो. आपको ये कैसा लगा, इसमें आपको और क्या चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना, प्लीज कॉमेंट्स में लिखिए, so that our next few classes for SNAP will be according to exactly what you want. At the same time, those who are looking for NMAT, आज ही एक और लाइक 2 घंटे बाद मेरा एक सेशन है, जिसकी अगेन बेसिकली मैं लाइव आऊंगी फॉर सिमिलर काइंड ऑफ क्लास, जो कि आई वुड से अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1 आवर की वर्कशॉप होगी, जिसमें हम सारे के सारे वर्बल के और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. सो ऑफ कोर्स आपके जितने आप मेरे ग्रुप्स में अगर हो तो मैं आपको उसमें इन्फॉर्म कर दूंगी. जो नहीं है वो ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको इसके लिए जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है, डाउट सॉल्विंग है, वो सब हम ग्रुप में डिस्कस कर लिया करेंगे. ठीक है. Thank you so much everyone for attending the session. I'll see you soon with another SNAP workshop as well as NMAT workshops. Yeah, thank you everyone. Bye bye. Have a nice day.